Hello to all the people who are watching this video. I hope you all are doing well and staying safe at your place. I am CS Priya Pal. I am a qualified company secretary who is working as a CS and whole-time compliance officer at one of the leading jewelry manufacturing company in Mumbai. As you all of know that CS exams are approaching and many students are going to appear for their examination like both the CS executive and CS professional into the next month. So considering this, I have decided to make a video for the 1 month study plan, 1 month study revision plan for the people who are having their attempt into the very next month. So this video is particularly for the CS executive old syllabus people, but also there are some tips and tricks which I will be sharing at the end of the video, so that will be useful for all the people who are going to appear for the examination. So please stay connected till the end of the video. So let's just get started without wasting much time. So this is we are having 1 month in our hand and 7 subjects to complete. So let's just divide this 7 subjects into the 2 parts, like the way we are already having it. Sorry, the way we are already having into the two groups. But let's just divide this group based on the combination of theory and practical subjects. So let's just divide into the 2 parts. One part will be having the 4 subject and it will be the combination of theoretical subject and practical subject, and another part will be having the combination of 3 subject, and same it will be of the practical and theoretical subjects. So let's just divide this 7 subjects, and now similarly we will divide this whole 1 month into the 15 days and 15 days. So for the first 15 days we will be studying and focusing on the first 4 subjects, and for the remaining 15 days we will be studying and focusing on the remaining 3 subjects. Okay, so for the first 15 days we will be studying 4 subjects each day. Yeah, so we will be studying 4 subject. हम 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ेंगे एंड हर एक सब्जेक्ट को वी विल डिवोट 3 आवर्स. हर सब्जेक्ट को हम लोग 3-3 घंटा देंगे. सो दिस विल मेक अप to 12 hours a day. So 12 hours a day, 4 subject we will focus. Yes, studying a 12 hours a day is very much important, especially अगर आप last के 1 month में हो. So yeah, we have to devote a 12 hours a day and 3 hours to each subject, and you can also go up to like 4 hours to each subject, but yeah, considering the break and nap between the like taking up the huge topics, so it is very much necessary. So we will be like taking 3 hours का एक सब्जेक्ट लेंगे and there will be a gap of 30 minutes between one session, like 3 hours का एक session होगा हमारा. So into the first like when you just start your day, it can be early in the morning or for the people who are like very much comfortable studying in the night. So at the start of the day, just started with the morning also. So just suppose कि if you are starting studying your like at 8 o'clock, आप सुबह 8 बजे से लेके आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो. So the schedule will be 8 to 11 and then 11:30 to 2:30 and then 3 to 6 and then 6:30 to 9:30. So this will be the schedule. 3 hours का schedule होगा and 30 minutes का there will be a break. Okay. सो नाउ इसमें अभी हमने शेड्यूल तो बना दिया कि 3-3 घंटे हमें पढ़ना है, बट विच टॉपिक, क्या सब्जेक्ट को हमें प्रेफर करना चाहिए. सो इट इज एज पर माई नॉलेज एंड व्हाट आई हैव डन फॉर माई CS examination. I used to like take up the subjects early in the morning. When I used to study early in the morning, I used to take up a topic which will require more of my energy, which will take more of my understanding, like a company law. Company law एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें you have to be very much active. आप ऐसे रात में company law लेके नहीं बैठ सकते क्योंकि वरना आप पहले ही सो जाओगे. So early in the morning you have to, अगर आप पूरे दिन पढ़ रहे हो 12 घंटे, तो you have to take the subject अपने मूड के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा. अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर वेरी मच एक्टिव, तो आप ऐसे टाइम पे कोई एक टफ एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइक कंपनी लॉ, सेबी और ECL. In the afternoon and in the evening, you can take any of the practical subject like company's account or taxation or costing. So in this way, किस टाइम पे आपका मूड कैसा रहता है, आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो.
बट यू हैव टू स्टडी 3 आवर्स का। इस तरीके से आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आफ्टर द लास्ट स्लॉट जो आपका 9:30 को खत्म होता है, उसके बाद में जस्ट हैव योर डिनर, बट बिफोर गोइंग टू द बेड यू शुड जस्ट like revise the formulas and section which you have read whole day। आपने जो 4 सब्जेक्ट पूरे दिन में पढ़ा है, उस चारों सब्जेक्ट्स में जो भी टॉपिक के फॉर्मूलाज आपने पढ़े, जो भी टॉपिक के सेक्शंस आपने पढ़े, यू हैव टू जस्ट क्विकली रिवाइज दैट। लाइक बिफोर गोइंग टू द बेड आपको तुरंत उसे रिवाइज कर लेना है। सो इन दिस वे यू विल बी स्टडिंग 13 आवर्स आपका हो गया, 12 घंटे आपने 4 सब्जेक्ट के ऊपर दिया, एंड देन 1 आवर में आप क्विकली रिविजन कर रहे हो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को। सो इन दिस वे आपने कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट किया। यू आर नॉट फोकसिंग मोर ऑन द थियोरिटिकल सब्जेक्ट और मोर ऑन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आपने बैलेंस मेंटेन करके रखा, थोड़ा आपने थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स को भी टाइम दिया एंड थोड़ा आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को भी टाइम दिया, एंड 1 आवर में आपने वो चीजें क्विकली उसका फॉर्मूलाज एंड सेक्शन रिवाइज कर लिया। सो आई थिंक दिस वे इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू द पीपल। लाइक इंस्टेड ऑफ आप 2-3 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ो और फिर उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट लो, लाइक कंटिन्यूसली इमेजिन आप 2-3 दिन कंपनी लॉ ही पढ़ रहे हो। जस्ट इमेजिन आपकी क्या हालत हो जाएगी। यू कैन नॉट स्टडी कंपनी लॉ कम्प्लीटली 2-3 दिन एट अ स्ट्रेट और एट अ स्ट्रेच, यू कैन नॉट स्टडी, बिकॉज ये इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी। Just imagine you are studying the incorporation topic, you are studying the minutes topic, and you are studying the AGM topics लगातार back to back. So this is not going to help you anyway. So rather you should just go for the theory and then practical, theory and then practical. So this will just help you like to keep yourself more active, to focus more on the practical and theoretical side. So this is the way to plan your schedule for the last 1 month. So this is just a revision thing. Please keep into the mind that this is for the revision thing. Please while revising don't study it like कि आप पहली बार उसे पढ़ रहे हो। तो प्लीज पूरे पैराग्राफ को पूरा थरोली पढ़ने मत जाओ। आपको ध्यान रखना है कि इट इज योर रिविजन, सो यू हैव टू जस्ट रीड द क्रक्स और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है आपको वो पढ़ना है। अदरवाइज आपका पूरा मंथ निकल जाएगा एंड आप लोगों का कोई टॉपिक खत्म नहीं होगा। सो कीप इन टू द माइंड कि आप ये रिविजन के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू डू अ हैस्टी रीडिंग। आपको उतना फास्टली चीजों को कवर अप करना है। Okay, so just these are the things which you should keep into the mind like while preparing your schedule. In the similar line what I have discussed, इसी लाइन पे यू कैन मेक योर प्लान। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट के साथ में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठता है, आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। सो प्लीज आई थिंक यू शुड गिव अ ट्राई टू दिस। just frame your timetable as per your understanding, as per your preparation। आपने लास्ट 11 months में जो भी पढ़ाई की है उसके हिसाब से आप अपना ये प्लान बना सकते हैं। सो गिव अ ट्राई एंड इफ एनीवेयर यू स्टक और आपको ऐसा लगता है कि you need my help, you are free to mail me, you are free to reach out to me any of the social media on the LinkedIn, or you can mail me at the Gmail ID I have mentioned here. So just give a try. Okay, so yeah, it was just about the revision plan. Now coming to the tips and tricks. So there are some tips and tricks, as you know that we are into the CS profession, and this CS are the professional examination and such kind of examinations जहाँ पे जितनी level of planning और जितना level of आपका like study है उसी same level का आपको planning भी करना है। आफ्टर ऑल ये सारी एग्जामिनेशन इट्स नॉट अबाउट बस रीडिंग आंख बंद करके सब पढ़ लिया। आपको प्लान भी करना होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस भी है। तो यू कैन नॉट जस्ट गो आंख बंद करके कि मैं सब पढ़ लूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। यू हैव टू प्लान, यू हैव टू एक्चुअली स्मार्टली प्लान करना पड़ता है कि मुझे क्या टॉपिक कब लेना है, क्या टॉपिक को कैसे लेना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, बिकॉज इट इज मोर अबाउट द प्लानिंग ऑल्सो। So considering this thing, I have like made 4 to 5 points like which are very much important while preparing for the examination and while preparing for the last 1 month. So here it is. There are majorly four things which every student should focus on, like while giving the examination, during the examination, and 1 month before the examination. The first one is to have a proper इंडेक्सेशन, लाइक प्रॉपर इंडेक्सेशन नॉट ऑफ द मॉड्यूल बट जो आप खुद अपने हाथ से बनाओ।
हर एक सब्जेक्ट का उनका टॉपिक क्या है, हर टॉपिक कितने पेजेस का है, आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो उस मटेरियल में वो टॉपिक कितने पेजेस का है, वो आपको अपने हाथों से हर पेज के बुक पे, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उस पे वो इंडेक्स आपका चिपका होना चाहिए, ताकि आप जब भी लेने बैठो कोई भी टॉपिक, जैसे हमने शेयर किया कि अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग एक टॉपिक लेने बैठते हो, आपने कंपनी लॉ आपने डिसाइड किया कि मुझे अभी कंपनी लॉ पढ़ना है, तो क्या आप उस दिन डिसाइड करोगे कि मुझे ये पढ़ना है, अरे मैं अभी ये पढ़ूंगा तो मुझे ये 3 घंटे में ये मुझसे हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच इज टू बी लाइक प्लान्ड इन एडवांस। आपको पहले से ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। एंड ये जो इंडेक्स सेशन है दिस विल हेल्प यू। अगर आपकी आंखों के सामने रेडी है कि ये टॉपिक 30 पेज का है, ये टॉपिक 2 पेज का है, तो इट विल बी वेरी मच क्विक फॉर यू टू डिसाइड कि ठीक है 3 घंटे में मुझे ये टॉपिक कर लेना है और ये टॉपिक कर लेना है। कंपनी लॉ में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, 2-3 पेज के, 3-4 पेज के हैं। तो आप वैसे अगर आपको ये आइडिया रहेगा कि ये टॉपिक छोटे पेज का है तो आप उसको 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हो। सो इंडेक्सेशन यहाँ पे आपको हेल्प करता है। द सेकेंड थिंग इज टू हैव अ फॉर्मूला बुक। जैसे मैंने आपको बताया कि सोने से पहले आपको जस्ट क्विकली रिवाइज करना है, तो अगर ये रिवाइज तभी होगा व्हेन यू हैव अ फॉर्मूला बुक और अ बुक जहाँ पे आप अपने इम्पोर्टेंट कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट सेक्शंस या फिर इम्पोर्टेंट केस लॉ ऑफ सेबी, ECL, बिकॉज वी आर अ CS स्टूडेंट, हमें एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर हम सेक्शन के साथ किसी आंसर को कोट करते हैं, तो इम्पोर्टेंट मार्क्स हम लोग केस लॉ अगर मेंशन करते हैं। सो ये सारे सेक्शंस, ये सारे लॉज, ये सारे केस लॉज हैंडी होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम के 1 डे बिफोर भी आपको पूरी मॉड्यूल ना पढ़नी पड़े, आपको बस इंपॉर्टेंट सेक्शन को गो थ्रू करना है। और ये आपको डेली बेसिस पे भी हेल्प कर सकता है। अगर आप डेली पढ़ रहे हो और डेली बस आधा घंटा या 5-10 मिनट भी आप इन सेक्शंस को बस गो थ्रू करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो द सेकेंड थिंग इज टू हैव अ फॉर्मूला एंड सेक्शन बुक। एंड द थर्ड थिंग इज, it is a very most important things which I have done during my preparation is it is to have one hero subject in each of the group. Like into the first group I should be having a one group जिसमें मैं बहुत ज़्यादा strong हूँ, बहुत ज़्यादा that कि मुझे उसमें exemption आ जाएगा। Why it is important to have a one hero? Because it will eventually help you to clear the whole group. Many of the time कैसा होता है कि पीपल सब्जेक्ट वाइज पास हो जाते हैं बट ओवरऑल वो पास नहीं हो पाते हैं। सो आप ओवरऑल पास हो पाओ, इसीलिए आप अगर आपको एक सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स आया हुआ है और बाकियों में आपने जस्ट पास किया है, तो आप पूरे ओवरऑल ग्रुप में निकल सकते हैं। तो सिमिलरली जस्ट टू ट्राई, फर्स्ट ग्रुप में कंपनी लॉ है, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द CS स्टूडेंट्स का कंपनी लॉ तो फेवरेट होता ही है। तो यू कैन मेक अ कंपनी लॉ एज योर हीरो इन द फर्स्ट ग्रुप, एंड इन टू द सेकेंड ग्रुप you can make a taxation, the second group you can make a SEBI or labor law as your hero. You can try to score more on those subjects जो आपके ज्यादा strong हैं। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे लास्ट के 1 मंथ पे एनर्जी वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, बट यू हैव टू ऑफकोर्स उसके अंदर पास तो होना ही है। बट जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है आपको उसके ऊपर इतना वर्क करना है कि आपको उसमें 80-90 आ जाए, ताकि जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो उससे सेट ऑफ हो जाए। सो थर्ड थिंग इज टू हैव a hero subject in each of the group. And the last and the for most important thing is, like for every professional student, not even the CS student, but to all the students who are going to give a professional examination or who are going to give a competitive exam, is to have a positive attitude, a trust and belief. लाइक आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि ठीक है, ऐसे टाइम में हमें बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, एंड स्पेशली जब हमारी एग्जाम इतनी बार पोस्टपोन हो चुकी है तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, इतना ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो प्लीज जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस नेगेटिव थॉट्स एंड प्लीज स्टॉप आस्किंग योर फ्रेंड्स कि तेरा कितना पढ़ के हुआ है या तूने क्या टॉपिक किया है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग यू लाइक ऑन दोज नेगेटिव थिंग, आप बुरी चीजों के बारे में सोचो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे एंड विच विल जो आपका परफॉर्मेंस ऑलरेडी रिड्यूस करेंगे। इंस्टेड आप उसके अलावा आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करो, आप अच्छी चीजें देखो, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करके आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके लास्ट के 11 मंथ्स की एनर्जी, पूरा स्ट्रेटेजी, फोकस सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सो प्लीज just try to focus on the positive side and just give your best for the last 1 month only,
and I think, yeah, I just pray that all of you just get good marks and just get cleared with this attempt. If you find this video helpful, please let me know into the comment section. Please like this video, share with your fellow friends who are going to appear for the examination. And if you need any kind of help with respect to your planning or with respect to like more tips, you can just reach out to me anytime. I'm there for you guys. I hope you guys have liked this video. Thank you so much, and please stay connected.